जी टेस्ट तैयार है सब स्टूडेंट्स का? रेडी है? आंसर मी गर्ल्स। यस मैम। रेडी हैं? जी मिस। चले जी, हलीमा ने कहा है, हलीमा इज रेडी। मैम जी जी, मैम कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? वेरी गुड, बड़ा प्यारा Yes. आपने सवाल और इतना मैम मैं खूबसूरत। 3 दिन से क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो रहा था हमारा। कौन सी स्टूडेंट बोल रही हैं? मैम आयशा जुल्फकार। ओके आयशा, आपसे तो मैंने सवाल ही नहीं किया, जब मैं करूंगी ना तब आप बताइएगा। अभी सवाल नहीं मैं कर मैम रही वो हूँ। जी जी, इट्स फाइन। कौन सा है? ओके मैम। ओके जी हलीमा, इट्स योर टर्न। जी टीचर। ओके, मैम what are planets and how did they come into existence? Planets are the stars that come into being due to the huge mountain which is formed on the surface of sun and then break due to the tidal force, and they came into and have some existence. Right, good. अच्छा जी, महानूर 262। ठीक है, यू आर स्माइलिंग, इसका मतलब है आपने तैयारी खूब की है। अच्छा, why is there no life on the stars? Life can exist neither in extreme cold nor in extreme hot. Stars are the big burning balls of fire. It is too much hot. Stars are big burning balls of fire. It is too much hot. Life melt away there. Life melt away there. Therefore, no life can exist on the star. राइट, गुड, शाबाश, आप सही मुस्कुरा रही थी। अच्छा जी, आप माहम सलीम, ठीक है, आप काफी चल के बाहर तक आई हैं, तो अब सवाल का जवाब तो बनता है। ठीक है माहम, रेडी है? अनम्यूट तो कर लें माहम। यस। Okay. How is that a star seldom finds another star near it? Question number 1 here. How is it? A star seldom finds another star near it because the star travels immense distance. That is a very rare event for one star to come near the other. And there is an average distance of well over 1,000,000 miles between one star and the nearest neighbor star on a scale model. Good, good. चले जी, Zarfishan Shehzad. Zarfishan, are you there? Mahnur Fatima. अच्छे ऑनलाइन होके गायब हो गए। जी माइदा, इट्स योर टर्न नाउ। डू यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आवाज आ रही है। जी, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? Question number 2. आपकी कोई आवाज नहीं आ रही।
According to the Sir James Jeans, when the stars, bending stars come to the nearing to the sun, uh, भूल गई? Any other they miss student? चलें रिवाइज कर लें. चलें माहम सलीम 54 रोल नंबर. It's your turn now. माहम सलीम 54 रोल नंबर. Ready हैं? Same question. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? बच्चे गुम हो गए या हैरान परेशान है? हम क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 है. According to Sir James Watt, when a wandering star come near the sun, its tidal would have raised on very high tides on the surface of the sun. ठीक है, ठीक हो गया. लाइबा तबस्सुम 44 रोल नंबर. लाइबा तबस्सुम. जी मैम. Okay. Tell us something about the beginning of life on the earth. It's question number 6. Beginning of life. On earth. According to Sir James Jeans, the planet cooled down slowly, or the planets cooled down slowly, or the life started through this planet in a very simple organism, Right. and gradually become complex. Okay. ठीक है. जी ज़ैनब. एकदम गायब हो जाते बच्चे. जी ज़ैनब रेडी हैं? चलें कुरातुलैन से सुन लेते हैं. कुरातुलैन. Yes, ma'am. Okay. Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. मैम दोबारा बोले. Why is our earth so frightening? Give some reasons. The universe is frightening because of its immense distance and distance of time. We feel fear because of likeness in the vast universe. We are lonely because life like our own does not anywhere else in the universe. जी. मैम ठीक है. जी ठीक है. जोया बिनते आसिफ. जी जोया. नो. समरा जावेद.
मैम। जी जी समरा, आपसे क्वेश्चन है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज? यस मैम। लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज? How has the scientific method helped us in our fight against the disease? In the past, yes, in the past, many people died of viral diseases like yellow fever, cholera, typhoid fever, measles, and cough. The scientific method has helped us in our fight against these diseases with the invention of modern medicines and academic control. Good, good. जी अलिशबा इम्तियाज, अलिशबा इम्तियाज, it's your turn now. जी अलिशबा, आपसे क्वेश्चन है, tell us about the sanitary condition like in our village today and how would you improve them? It's question number 3. What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? The scientific method has changed the behavior of modern man because he has now become less severe, fearful, and more critical than his forefathers. कुछ सुनाया आपने, कुछ लग रहा है आंसर ही दिया लेकिन आवाज कोई नहीं आई आपकी। मैम अगेन सुना दूं? जी जी सुनाइए। The scientific method has changed the behavior of modern man because he has now become less fearful and more critical than his forefathers. जी ठीक है, सही सुना होगा आवाज नहीं आई वैसे। चले अब सुनते हैं जी, इकरा 376 रोल नंबर, इकरा 376 रोल नंबर, इकरा are you there? Yes, Ikra 376. How has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? No? अक्सा 110 रोल नंबर, आप इसका आंसर दें। अक्सा 110 रोल नंबर। It has been made possible to increase the production of food by using various fertilizers and pesticides manufactured by the scientific method. Good. Moreover, the scientific method has also enabled us to find new way of prevention of foods like freezers, dehydrations, quick and freeze increased method quality है। of food. Right, जी? right. Quick freeze method है। Quick freeze method. And dehydration or Dehydration to increase the quality of food. good. ठीक है। साइमा अशरफ 278 रोल नंबर। Are you there? अभी तो आई थी। यक्सा 458 Are you there? चले। सोमिया है, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ा आपका। We are now generally less fearful than our ancestors.
What were our ancestors afraid of? It's question number 5 from lesson number 2. Yes, girl. नहीं जवाब आ एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आंसर देना चाहते हैं? मैम मैं सुनाऊं इसका आंसर? जी जी, सुंदर बताइए. We are now generally less fearful than our ancestors because they believe in the sign of good or bad luck. They were afraid of black cats, broken mirror, and the number 13. There were different kinds of charms to avoid bad luck. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है. How has the scientific method helped us in our fight against disease? Now this is open choice. Any student who wants to answer. Superstitious are There are 2 students want to. Ji Mahmood. Babies are born in hospital today. They are vaccinated against diseases. People eat fresh food, drink pure water, and live in clean environment. All these things have become possible because of the scientific method. Thus, it has helped us a lot in our fight against diseases. Good. Or koi student, any other student who wants to answer this question? Addition in the freeze method which increase the quality of the food. कोई पता नहीं चल रहा. जी अक्सा, आप सुना रही हैं? Scientific method. जी जो भी सुनाना चाहे. No one? इस क्वेश्चन अगेन रिपीट करें. Question number 1 ही है. How has the scientific method helped us in our fight against disease? In the past, many people died of the fatal diseases like yellow fever, cholera, typhus, or measles and whooping cough. The scientific method has helped us in our fighting against disease with the invention of modern medicine and epidemic control. ठीक है, ठीक है. चले जी, आज के लिए काफी है इतना टेस्ट. अब लेसन पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है. ठीक है गर्ल्स, अच्छा तैयार किया आप सबने, कोशिश की. और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है, अब हम डे वाइज जो है रिवीजन भी साथ साथ करेंगे और साथ में नेक्स्ट लेसन भी पढ़ते जाएंगे, ताकि आपकी पीछे से तैयारी भी होती जाए. गॉट इट? चलें जी, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इट्स पार्ट 2. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं. पार्ट 1 के हमने 8 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं. किसी को याद है कौन कौन से पढ़े हैं? Yes, miss. कौन कौन से थे लेसन्स? नाम तो बताएं. way to progress तक में जी. नाम लो. जी नेम बताइए. The dying sun using the scientific method. Boys fall in college. End of term. Or on destroying book. The man who was hospital. My financial career. China way to progress. China's way to progress. ये 8 लेसन हैं जो हमने पढ़ लिए हैं.
आप जो है अपने माइक्स ऑफ कर दें ताकि जो है आप क्या? कंसंट्रेशन से लेसन पढ़ सकें। 11 बजे है इसके। इट्स तो पार्ट उठा 2। दो। जी, फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड हम पढ़ेंगे आज। सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल इसके राइटर हैं। सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल जो है इंग्लैंड के ब्रिटेन के जो है 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और इनको जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला है फॉर हिज राइटिंग। और इसमें जो है दिस ऐसे है सम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। आपने पढ़ी होगी उर्दू में आप बीती, और एक होती है अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं आप। सो दिस ऐसे इज अबाउट वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ कि जब उसने जो है हारो में एडमिशन लेना था और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, टेस्ट का एग्जाम देने के लिए वहाँ पे गया था। एंड व्हाट हैपेंड ओवर देयर, वहाँ पे उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपका भी होगा, सपोज आप मेडिकल में जाएंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सो इस तरह से मुख्तलिफ होता है। अब हारो में जब उसने एडमिशन लेना था तो वहाँ पे जब गया, ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड और 12 साल उसकी उम्र थी। अब उसका एडमिशन होना था वहाँ पे। जब उसका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में इसको जो सब्जेक्ट्स पसंद थे वो थे पोइट्री, ऐसे राइटिंग और हिस्ट्री। ये ही लाइक दीज सब्जेक्ट्स द मोस्ट। लेकिन अब इम्तिहान किस चीज़ का आ गया जी? ग्रीक का आ गया और लैटिन का आ गया और साथ में एक और मुश्किल सब्जेक्ट था जो कि मैथ्स का, जिसमें इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अब इम्तिहान कमरा इम्तिहान में ये बैठ गया, इसको शीट दी गई आंसर लिखने के लिए। ही इवन डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट दीज लैंग्वेजेस, और उसने सिर्फ अपना नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके ब्रैकेट लगाई और कहीं से कहीं आके दाग कोई लग गया। एंड ही कुडंट डू एनीथिंग इन द पेपर। एक लफ्ज नहीं वो लिख सका सवाए नाम और क्वेश्चन नंबर 1 और उसके ब्रैकेट के अलावा। और फिर उसके बाद वो पेपर ले लिया गया। अब उसको एडमिशन मिला या नहीं मिला एंड व्हाट हैपेंड विद हिम, ये सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। थोड़ा आपका भी तो सस्पेंस रहे ना, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा कि ओके जी, टाइम इज रनिंग आउट। इसको साथ साथ मैं हाईलाइट करूंगी ताकि आपको भी, पहले तो हाईलाइट करके मैंने रखे होते थे वर्ड्स, लेकिन अब आपके सामने करूंगी ताकि आपको भी आइडिया हो कि मैं किस वर्ड की बात कर रही हूँ। आई हैड स्कार्सली, स्कार्सली किसे कहते हैं? स्कार्सली कहते हैं बमुश्किल। पास्ट माई 12th बर्थडे, अभी मैंने बमुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह मनाई थी। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल होता है अनवेलकमिंग, जिसको आप पसंद नहीं करते, रीजन ऑफ एग्जामिनेशंस। उसके बाद जो है मैं अपने नापसंदीदा रीजन, रीजन कहते हैं इलाके को, किसके इलाके में दाखिल हो गया? इम्तिहानात के, एग्जामिनेशंस कहते हैं इम्तिहानात को। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर आई वॉज डेस्टाइन्ड टू जर्नी, जिसके बाद जो है अगले 7 साल मुझे, मेरी किस्मत में था, आई हैड डेस्टाइन्ड टू जर्नी, मुझे सफ़र करना था उसमें। These examinations were a great trial, ट्रायल कहते हैं मुश्किल को। ये इम्तिहानात मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। The subject which were dearest, dearest to the examiners, dearest क्या होते हैं? पसंदीदा तरीन। dearest to the examiners, वो मज़ामीन जिनको एग्जामिनर्स बहुत पसंद करते थे, were almost invariably those I fancied least, fancied कहते हैं लाइक करना। अब पहला मसला क्या था? क्यों ट्रायल उसके लिए इम्तिहानात थे? इसलिए थे कि जो मज़ामीन एग्जामिनर्स को पसंद थे वो राइटर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। फैंसी लीस्ट का क्या मतलब है? बहुत कम पसंद थे। लीस्ट होते कम अज कम। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, मैं क्या चाहता था कि मेरा इम्तिहान लिया जाए हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे कहते हैं? तारीख को। पोइट्री दूसरा सब्जेक्ट है, शायरी, और तीसरा था राइटिंग एसे। ये 3 सब्जेक्ट थे जो कि राइटर के पसंदीदा थे। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स एंड देयर विल प्रिवेल्ड। अब क्या था? इम्तिहान लेने वाले जो थे उनका क्या पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे? लैटिन, लैटिन किसे कहते हैं? लातीनी को। और दूसरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, रियाजी, एंड देयर विल प्रिवेल्ड, और उनकी ही विल क्या होता है? मर्जी, और उनकी ही मर्जी चली। Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory
आंसर। और इसके अलावा जो उन्होंने सवाल भी इन मज़ामीन के हवाले से मुझसे पूछे वो भी मैं तसल्ली बख्श उनका जवाब नहीं दे सका। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू। अब कितनी अपनी हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि हमसे पूछा जाए कि हमसे क्या पूछा जाए। सो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड कि मुझसे पूछा जाता कि मैं क्या जानता हूँ और मुझसे उसमें सवाल किए जाते। They always try to ask what I did not know. लेकिन उस्तादों ने भी वही पूछा जो कि मुझे नहीं आता था। When I would have willingly displayed होता है शो करना, my knowledge, जब मैं तो खुद तैयार था, willingly रजामंद होना, जब मैं रजामंद था कि मेरी जो है वो काबिलियत नॉलेज को देखा जाए, they sought to expose होता है जाहिर करना, उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की my ignorance क्या होती है? जहालत। उन्होंने तो मेरी जहालत को जाहिर करने की कोशिश की। This sort of treatment किसे कहते हैं? रवैये को। Only had one result. इस तरह के रवैये का एक ही नतीजा निकला, I did not do well in the examinations. इसका नतीजा ये निकला कि मैं इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। This was especially true of my entrance examination. ये किसके हवाले से बिल्कुल सही सादिक आता है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया हारो में। The हेडमास्टर का क्या नाम था? मिस्टर वेल्डन। However, took the broad-minded होता है बड़ा वसी और खुले जहन से उसने व्यू लिया of my Latin prose लातीनी जुबान में जो प्रोज का उसका पेपर था, जो पार्ट था उसका, he showed discriminant कहते हैं अपनी जहानत का उन्होंने बड़ा मुजाहिरा किया। In judging my general ability, this was the most remarkable, ये बहुत remarkable praiseworthy को कहते हैं, बड़ा unusual या extraordinary, because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. अब वो बड़ा हैरान हो रहा है कि मिस्टर वेल्डन ने मुझे कैसे मेरा पेपर चेक किया और उनमें क्या बसीरत थी कि उन्होंने कैसे चेक किया होगा मेरा लैटिन का पेपर। आई रोट, अब उसने किया क्या था पेपर में, आप बता रहे हैं। आई रोट माई नेम इन द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज, सिर्फ उसने अपना नाम सबसे पहले ऊपर लिखा, टॉप ऑफ द पेज। आई रोट डाउन द नेम ऑफ द क्वेश्चन 1 और फिर मैंने नीचे लिखा क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन कहते हैं थिंकिंग, सोचने के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10 और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसके गिर्द उसने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट डाल दी। बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैं क्या लिखूं, क्या रेलिवेंट है, रेलिवेंट उससे बिल्कुल मुनासिब या उससे ताल्लुक रखने वाली जो चीज है। इंसिडेंटली क्या कहते हैं? एनी स्टूडेंट? हादसाती तौर पर। हादसाती तौर पर, ठीक है। एक सेकंड, अभी कुछ और भी स्टूडेंट आ गए। बाय चांस टेस्ट हो गया जी, बच्चे आने शुरू हो गए, मुबारक हो। बेटा ये जो स्टूडेंट्स हैं काइंडली अपने नेम के साथ अपनी आईडी बनाइए, अपना नेम उसमें लिखें और रोल नंबर लिखें। बीच में अननोन थे, मैंने काफ़ी रिमूव भी किए और अभी भी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी। Incidentally, there arrived some from nowhere, in particular a blot. Blot किसे कहते हैं? धब्बा, निशान को कहते हैं। And several smudges, दाग धब्बे कहीं से भी आ गए हादसाती तौर पे। I gazed होता है घूर घूर के देखना। For the whole 2 hours at the sad spectacle. 2 घंटे, कितने टाइम उसने देखा है? For 2 whole hours, 2 घंटे मुसलसल at the sad spectacle. सैड स्पेक्टिकल कहते हैं इसी दुखी और गमज़दा से मंजर को वो देखता रहा 2 घंटे। क्या हुआ था, उसने पहले क्वेश्चन अपना नाम लिखा, देन ही रोट क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसके बाद उसे बहुत सोच के क्वेश्चन नंबर 1 के गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी। फिर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या लिखे और फिर 2 घंटे जो है फिर कहीं से आके उसके पेपर पे निशान से लग गए और 2 घंटे वो उन निशानात को ही देखता रहा।
एंड देन मर्सीफुल, मर्सीफुल कहते हैं रहम दिल को। अशरर यहाँ पे होगा हेल्पर, असिस्टेंट को कहते हैं। collected my piece of foolscap with all the others and carried it to the headmaster's table। जैसे होते हैं इम्तिहान लेते हैं, कुछ असिस्टेंट भी होते हैं साथ में, कुछ जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं। उसने क्या किया, पेपर लेके जाके हेडमास्टर की टेबल पे रख दिया। I was sorry, it was from the slender indication of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow। अब वो कहता है ये तो बड़ी मतलब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी। स्लेंडर किसे कहते हैं, बेवकूफ, हकीर को कहते हैं। कि वो बड़ा वो समझ रहा था कि हकीर सी भी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि उसको इम्तिहान मतलब में क्वालिफाई कर जाएगा, ही वुड बी एबल टू गेट एडमिशन। मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, उन्होंने, मिस्टर वेल्डन कौन था, हेडमास्टर था, उन्होंने ये नतीजा निकाला दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हारो। और मिस्टर वेल्डन ने ये उसका नतीजा निकाला कि ही कुड गेट एडमिशन इन द स्कूल। इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट, तो कहते हैं उसको इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर वेल्डन को। It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things। अब वो हमें क्या पता चलते हैं, उनमें सलाहियत थी, capable इसके अहल थे, of looking beneath the surface of the thing, a man not dependent upon paper manifestation। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ सफ़े पे लिखी हुई तहरीर या चीज़ों पे ही इन्हिसार नहीं करता। I have always had the greatest regard for him। इसीलिए मैं मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, ताज़ीम है। रिगार्ड कहते हैं रिस्पेक्ट को। इन कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, ऑफ द डिसीजन, इस फैसले के नतीजे में, आई वॉज इन द कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। कहता है इसके नतीजे में मैं पास तो हो गया, लेकिन किस दर्जे पे रखा गया, लोएस्ट लेवल पे रखा गया। द नेम ऑफ द न्यू बॉयज वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट in alphabetical order as my correct name Spencer Churchill begin with an S। अब उसने कहा चूंकि